क्वेश्चन नंबर 341 श्री अभिषेक सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जुड़ा हुआ ये विषय जो न सिर्फ देश की सुरक्षा से संबंधित है बल्कि परमाणु ऊर्जा के माध्यम से तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके अलावा देश में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज, प्रसंस्करण और उसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए वर्तमान दिशा निर्देश क्या हैं। धन्यवाद। मैडम स्पीकर, आदरणीय सांसद जी ने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। I am thankful to him for having raised a very thought-provoking issue. Now, to take the second part of the question first, as far as the provisions to regulate the exploration processes are concerned, I am glad to share with this august House that we have 3 sets of rules. The first Atomic Energy Act was formulated in 1962, under which anybody who discovers a resource of uranium or any such prohibited material is expected to intimate the concerned authorities within a period of 3 months. We also have Atomic Energy Regulation 1984. Rule 3 of these rules clearly states that in case exploration has to be taken place, it cannot be undertaken without obtaining a proper license. As of today, the entire exploration process is under the control of the government, and there are 2 public sector units which have been authorized. First is the Uranium Corporation of India Limited, which regulates the uranium exploration, and the second one is the Rare Earth Limited, which regulates the monazite exploration, which is a source of thorium. Concerning the other part of the question raised by the honourable member about the reserves, as of today, I am pleased to inform the august House that the uranium resources and the monazite resources in the country are of a sizable quantity, and the resources have increased almost by 25% over the last 1 decade, the world over, including in India. If you wish to have the exact statistic figures, as of day, we have 2,19,000 approximately metric tons of uranium reserves or resources, and I'm sure the honourable member will be happy to know that from his own state of Chhattisgarh itself, we have about 4,000 metric tons of resources, and the district from which he hails, the Rajnandgaon, has about 1,600 metric tons of uranium resources. The exploration process is going on. There were certain obstacles from time to time have happened, even in the state of Chhattisgarh, from where the honourable member hails. The exploration in Chhattisgarh began in 1976. It carried on for 10 years up to 1986. In 1986, there were some issues regarding the renewal of release because the authorities felt that the economic viability was not up to the mark, but this has been overcome. And now, I am pleased to inform the honourable member that in his own state, we have now identified 4 more districts, namely the district of Durg, Ambikapur, Raigad and Bastar, where also the possibilities of exploration are being undertaken. Second supplementary. धन्यवाद मंत्री जी। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरुआत किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या भविष्य में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेकर कोई कार्य योजना जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बनाई जाएगी या इस दिशा पे कोई विचार चल रहा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आदरणीय सांसद जी ने। इस विषय को लेकर के
हमारे पास इस समय वर्तमान में 20 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं पूरे देश में। ब्रॉडली स्पीकिंग इनको 3 या 4 श्रेणियों में हम समझ सकते हैं। इनमें से एक है लाइट वाटर रिएक्टर, और मैं आप मेक इन इंडिया पर भी आऊंगा 2 ही क्षणों में। लाइट वाटर रिएक्टर कुंडकलम में है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु प्रदेश में, जहां से 1000 मेगावाट एनर्जी उत्पादित होती है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिएक्टर है। उसके अतिरिक्त लेकिन इसमें जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वो रशियन सहयोग से बनाई गई है, वो इंडिजिनस नहीं है, जैसे सांसद जी ने संकेत किया। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वो कल्पकम में स्थित है तमिलनाडु में, वो पूर्णतः इंडिजिनस है। अब तीसरे रिएक्टर एक और किस्म का होता है जिसे हम कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। परंतु मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हुए इस ओर संकेत करूंगा कि मेक इन इंडिया अर्थात इंडिजिनस कैपेबिलिटी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होगा जब हमारा एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर संचालन में आएगा। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर भारत एटॉमिक एनर्जी सेंटर द्वारा निर्माणित किया जा रहा है, पूर्णतः इंडिजिनस है। इसके कहां स्थापित किया जाएगा उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा चली। अब ये मत बन रहा है कि इसको संभवतः तारापुर में, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाए। इसकी स्थापना का कार्य अप्रैल 2016 तक संपन्न होने की संभावना है और ये फंक्शनल हो जाएगा 2020 या उसके बाद 1-2 वर्ष में। और ये पूर्णतः एक तो भारतीय निर्माण और भारतीय वैज्ञानिकों की देन होगा, पूर्णतः मेक इन इंडिया, और इसका ये भी लाभ होगा, इसकी एक्सक्लूसिवनेस रहेगी, ये थोरियम फ्यूल का उपयोग करेगा। एंड थोरियम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड इज इंडिया। सो इस प्रकार से भी इसका एक सिंबॉलिक महत्व भी रहेगा और ये एक देश के लिए एक गौरव का भी स्वरूप बनेगा। Yes.